گے کہ خدا کیا فرماتا ہے ہمیں. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ جو ٹائٹل ہے، جو ٹاپک ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھنا. یسوع مسیح نے کیا کہا 45 آیت میں؟ تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنا سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے. خدا کی یہ خوبی ہے، خدا کی یہ ہابی ہے. وہ آپ کو جلدی ڈکلیئر نہیں کرتا کہ آپ آج ہی راست باز ہو گئے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس کے پہلے بیٹے ٹھہرو. ہمیں بیٹا بننے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بنے. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کل کلام سن رہے تھے خدا کے بندہ سے، تو اس نے کہا کہ جو مزدور ہوتا ہے، جو بھیڑے چراتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے. وہ بھیڑے چرا نہیں سکتا کیونکہ وہ مزدوری پر، اجرت پر بھیڑے چرا رہا ہے. جب بھیڑیا آتا ہے نا، بھیڑیا بھیڑوں کو پکڑنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے، تو مزدور بھاگ جاتا ہے. لیکن جو بیٹے ہوتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں اپنے باپ کے گھر میں. ہمیشہ ملازمت چھوڑ کر جاتے ہیں. جو گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ گھر سے باہر نہیں جاتے، وہ گھر میں ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ باپ کے بیٹے ہوتے ہیں. جب میں کلام سناتا ہوں تو میں آپ کو بات ایک ضرور بتاتا ہوں کہ باپ جو ہوتا ہے نا، وہ 100 بیٹے پیدا کر سکتا ہے، لیکن بیٹے 100 ہو کر بھی اپنے باپ کو پیدا نہیں کر سکتے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جس نے ہزاروں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنائے ہیں، کیا وہ ان کو چھوڑے گا؟ وہ کہتا ہے کیوں برساتا ہے وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر؟ آج جو بارش پڑ رہی ہے وہ سب پر پڑ رہی ہے. وہ بارش یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ راست باز ہے، یہ بدی کر رہا ہے، یہ نیکی کا کام کر رہا ہے. دونوں پر پڑ رہی ہے. خدا آپ کو ابھی تک برابر رکھا ہوا ہے. آپ کو اس نے برابر رکھا ہوا ہے کہ تم سمجھ جاؤ. ایسا یسوع مسیح نے مثال کیوں دی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشرق بیٹا اپنے باپ کا مال لے کر، کتنے لوگوں نے یہ کلام سنا ہوا مشرق بیٹے کا؟ ہم سب نے سنا ہوا. زوردار تالیاں اس بات کے لیے. جو مشرق بیٹا اپنے باپ سے لڑ کے اپنی جائیداد کا حصہ لے کر دور پردیس میں چلا گیا، پردیس میں جا کر عیش و عشرت میں اپنا مال اڑا دیا. جب اس نے مال اڑا دیا تو وہ غیروں کے ساتھ مزدوری کرنے لگا. تو آپ جانتے ہیں کہ جو مزدور بندہ ہوتا ہے نا، آج جب مہنگائی کا دور ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہوگی، مزدوری سے پیٹ نہیں بھرتا ہے. جب وہاں وہ بندہ اپنا مال اڑا چکا جو اس کے باپ نے کمایا ہوا تھا، تو وہ ملازمت پر وہاں رکھا گیا، اجرت پر وہاں رہنے لگا، کسی کے ہاں سور چرانے لگا. تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہو گیا اس ملازم کا؟ وہ سوروں کے ساتھ پھلیاں کھانے لگا. تو اسے یاد آیا کہ میرے باپ کے پاس تو بہت سارے نوکر چاکر ہیں، میں کیوں نہ میں اسے باپ نہیں کہوں گا، میں اسے یہ کہوں گا کہ اگر تیری مجھ پر دیا ہو، تیرا اگر مجھ پر کرم کی نظر ہو تو مجھے اپنے نوکروں میں شامل کر لے. وہ اس لیے اس نے سوچا کہ چلو یہ اچھا ہے کہ میں جا کر اپنے باپ کے پاس اچھی روٹی تو کھا لوں گا، یہ سوروں کے ساتھ پھلیاں مجھے نہ کھانی پڑیں گی. تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو لکھا ہے کہ باپ جو ہے، جو آسمانی باپ ہے، وہ سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر کیا کرتا ہے؟ برساتا ہے. تو ہوا کیا؟ جب مشرق بیٹا واپس آیا، بائبل مقدس بیان کرتی مشرق بیٹے کے بارے میں کہ اس کا باپ جو ہے وہ ڈیلی چھت پر چڑھ کر دیکھتا تھا کہ شاید جو میرا بیٹا مجھ سے روٹ کر چلا گیا ہے واپس آ جائے. یہی یہاں مثال ملتی ہے کہ خدا ڈیلی دھوپ آپ پر برساتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بیٹے جو گناہ اور بدی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ واپس لوٹ کر آ جائیں. اسی لیے وہ آپ پر میںہ بھی برساتا ہے اور دھوپ بھی برساتا ہے. یسوع مسیح یہی سکھا رہے ہیں ہمیں کہ وہ جو آسمانی باپ ہے وہ آپ پر کرم کرتا ہے، ہمیشہ اپنا فضل کرتا ہے کہ ہم اس کے فضل کے نیچے بیٹھے ہیں. وہ باپ جو چھت پر چڑھ کر، اپنے محل پر چڑھ کر ڈیلی اپنے بیٹے کا ویٹ کرتا تھا کہ میرا بیٹا جو مجھ سے روٹ کر گیا ہو سکتا واپس آ جائے. تو اسی شام جب وہ بیٹا واپس آ رہا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اس باپ کو اتنی خوشی ہوئی بیٹے واپس آنے کی. اس نے کیا کیا کہ اس نے دور سے دیکھا اور چھت سے نیچے آیا تو بیٹے کے کپڑے پھٹے ہوئے، اس کے سے بدبو آ رہی تھی. لیکن باپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کے بدبو کیوں آ رہی ہے. اس نے اسے گلے لگایا. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب اس نے گلے لگایا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کی پوشاک کو جو ہے وہ بدل ڈالو. تو بیٹا کیا کہتا ہے جو واپس آیا تھا؟ بدبو کون سی تھی؟
बदी की बदबू, गुनाहों की बदबू जो उसके जिस्म से आ रही थी, वो बाप ने धो डाली। हमारा आसमानी बाप हमारी बदियां, हमारे गुनाह धोना चाहता है। अगर हम मसीह में कायम हैं तो वो ये हमें बता रहा है कि जब मुशरक बेटा वापस आया तो बाप ने कहा कि इसकी पोशाक को बदलो। तो हमारे गुनाह करने का इकरार क्या है? पतरस ने क्या किया? जब मछलियां आई तो उसने कहा कि ए उस्ताद हमें माफ कर, हम बहुत गुनहगार हैं। तो ये बेटा जब मुशरक वापस आया तो उसने क्या कहा कि ए बाप, मैंने तेरा गुनाह किया है, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मुझे माफ करे, लिहाजा तू मुझे अपने नौकरों में शामिल कर ले। तो बाप को और ज्यादा तरस आया कि मेरे बेटे को अपने गुनाह का इकरार किया है, मेरे बेटे को पछतावा हुआ है कि उसने बदी की है। तो उसने उसे अंगूठी पहनाई, नलाया धुलाया, अच्छी पोशाक पहनाई बादशाहों वाली, और उसे दोबारा अपने घर में रखा। तो जब बड़ा बेटा आया तो इस बात से नाराज हुआ। जब उस घर में पार्टी हो रही थी, शोरो गुल हो रहा था, नाच रंग हो रहे थे, तो बड़े बेटा जब खेतों में से आया तो उसने बाप से नाराजगी का इजहार किया। क्या बाप, देख मैं तो तेरे साथ ही रहा हूं, मैंने कभी तेरी किसी बात को रद्द नहीं किया, मैं हमेशा तेरी हुक्म अदूली कभी नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद जब ये अपना माल, अपना जो हिस्सा था लेकर चला गया, उड़ाकर वापस आया है, उसके बावजूद तूने इसके लिए बछड़ा ज़िबा किया। मेरे दोस्तों के लिए मेरी बर्थडे पर तूने मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन ये मेरा छोटा भाई जो मुझसे नाराज होकर गया था, जब ये वापस आया है तो तूने इसके लिए बड़ा बछड़ा कर दिया है, पला हुआ मेंढा कर दिया है, और बड़ी पार्टी कर दी है जहां सब नौकर शामिल हैं, सब मोहल्ले के लोग शामिल हैं, कलीसिया के लोग शामिल हैं, लेकिन तूने मुझे बाहर खेतों से बुलाना गवारा नहीं समझा। लेकिन बाप क्या कहता है? बाप का इजहार मोहब्बत देखिए कि बाप किस तरह इजहार मोहब्बत करता है अपने बेटे बड़े के साथ। कहता है कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, ये जो सारा मेरा है, ये सब कुछ किसका है? तेरा है, और जो तेरा है वो किसका है? मेरा। हालेलुया, जोरदार तालियां। बाप जो होता है वो बेटे को कायल किस तरह करता है? अब बेटे क्यों यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसके बेटे ठहरो, उसके बेटे बनो, नौकर ना बनो। हम बाइबल में बहुत जिक्र सुनते हैं कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। भाई, मजदूर अपनी मजदूरी लेकर चला जाएगा, लेकिन वो कलीसियाई काम नहीं करेगा, वो भेड़ों को चराएगा नहीं। अगर कोई दूर से मजदूरी करने आता है, संडे वाले दिन वो मजदूरी करेगा, भेड़े चराएगा, चला जाएगा, उसके बाद भेड़ों को भेड़िए खाएं या और कोई खाए, उससे इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस बात को जानना है कि हमारा अच्छा चरवाहा जो है वो यीशु मसीह है। हमारा अच्छा आसमानी बाप जो है वो यहोवा खुदावंद है, जो रास्तबाजों और बदों पर दोनों पर मींह बरसाता है। और क्या करता है? सूरज बरसाता है। कोई और खुदा ऐसा कर सकता है? नहीं, ये सिर्फ खुदा वो कर सकता है जिसने आसमान बनाया है और जमीन बनाई है। मेरे जीजों, आज समझने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम इतनी जल्दी लोगों को डिक्लेयर कर देते हैं ये शरीरी है, ये साधक है। ऐसा करने का बाइबल हमें हुक्म नहीं देती है। बाइबल कहती है कि तुम साधक को शरीर ठहराते हो और शरीर को साधक ठहराते हो, तुम ठोकर का बायस बनते हो, तुम उनसे ज्यादा गुनहगार हो, क्योंकि तुम अदालत करनी सिर्फ खुदा के बेटे ने है, यीशु ने अदालत करनी है। हम यहाँ लोगों की अदालत करने को बैठे हुए हैं। कलाम मुकद्दस यीशु मसीह कहते हैं कि रास्तबाजों न रास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। आज जब मींह पड़ रहा था, बारिश पड़ रही थी, तो मींह ने ये नहीं देखा कि ये भाई पात्री है, ये भाई पात्री नहीं है, ये आम बंदा है, सब पर इक्वल बारिश पड़ी है। खुदा का ये हॉबी है कि वो अपने लोगों को साए तले रखता है। वो बताना चाहता है कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ मेरे बेटे, मेरे पास वापस आ जा, मैं तेरे गुनाह धोना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बादशाह बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तख्त पर बिठाना चाहता हूँ, क्योंकि तू मेरा बेटा है। अगर हम मुलाजिम बन के रहेंगे तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, कोई हमारे अंदर क्वालिटी नहीं होगी। अगर हम बेटे ठहरेंगे तो आप जानते हैं कि हम उस मिरास के हकदार होंगे। हमें बदियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा आसमानी बाप जो है वो हमारी बदियों को खत्म करेगा, हमें बादशाही पोशाक बनाएगा। लेकिन हम उसके पास आए तो सही, उसके पास बैठे तो सही। क्या कोई और खुदा कहता है क्या मेहनत उठाने वालों? आइए हम जरा ये देखेंगे। आई तो मत्ती की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 27 आयत है।
28 आयत है। आइए हम देखते हैं। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया, जोरदार तालियां इस बात के लिए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं आराम दूंगा। और कोई खुदा नहीं कहता है, बड़े उलिया, बड़े नबी, बड़े पैगंबर इस दुनिया में आए, किसी ने ये नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा कि बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम क्या है? हमेशा का आराम, हमेशा की जिंदगी कौन देता है? सिर्फ यीशु मसीह, उसके सिवा और कोई नहीं है जो हमेशा की जिंदगी दे। वादा यीशु मसीह के साथ है कि वो हमें जिंदगी देगा। आज हमें जरूरत है, हमारी मेहनत क्या है, हमारी मुशक्कत क्या है, किस लिए यीशु मसीह बुलाता है? हम गुनाह का बोझ उठाए हुए हैं, हम बदियों का बोझ अपने सर पे रखे हुए हैं। वो कहता है वो उतार दो, आओ मेरे पास आओ, मेहनत उठाने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर हम आराम पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास आए। क्यों? यशवा का ध्यान खुदा की बातों पर रहता था, उसके कलाम पर रहता था, क्योंकि वो ये कलाम आज भी बड़े बड़े काम करता है। देखो यीशु मसीह ने ये इख्तियार बेटों को दिया है कि जाओ मेरे नाम से तुम लोगों को बपतिस्मा दो, तुम मेरे नाम से सांपों को उठा लोगे, बिच्छुओं को कुचलोगे, और कोई जहरीली चीज पी भी जाओगे अनदेखे तो वो तुम्हें असर ना करेगी। ये इख्तियार बेटों के पास है। बहुत सारे लोग, क्या लोग रोजे फास्टिंग नहीं करते 4-4 दिन की? वो भूखे रहते हैं, क्या वो मर जाते हैं? वो बचे रहते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से रोजे रखते हैं, वो कोई अपने आप से नहीं रखते। आज जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को जाने समझे कि खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है, क्या सिखाता है। हमें सीखने की जरूरत है। जब हम सीखते नहीं है तो हम लोगों को सिखाएंगे क्या? हम खुद तो सीखे हुए नहीं है तो हम लोगों को क्या सिखाएंगे? उस्ताद तब बनता है, पहले वो शिगिर्द बनता है। यीशु मसीह के जितने शिगिर्द थे और रसूल थे, सबसे पहले वो 3 साल 6 महीने यीशु मसीह के साथ उन्होंने मिनिस्ट्री की। वो यीशु मसीह के साथ साथ चले, उसकी तालीम को सुना। जहां उनको समझ नहीं आती थी, यीशु मसीह से वो पूछते थे कि हमें इसका मतलब बता, हमें सिखा कि ये बात जो तूने कही है इसका मतलब क्या है। तो यीशु मसीह को बताते थे कि क्या मतलब है। हम कभी कलाम सीखा नहीं तो हम सिखाएंगे क्या लोगों को? सीखना बहुत जरूरी है। यशाया 55 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि यशाया कहता है कि ऐ खुदावंद मुझे शिगिर्द की जबान अता फरमा। जब हम शिगिर्द बनेंगे तो हमारी जबान जो है वो उस्ताद का लबो लहदा बोलेगी, उस्ताद के अल्फाज बोलेगी। और हमारा उस्ताद जो रूल कुद्दस है, जो जीसस क्राइस्ट है, वो हमें सिखाता है कि हमने किस तरह लोगों को इस पैगाम को, इस इरशाद आज़म को लोगों तक सुनाना है। आज जरूरत है कि हम इस कलाम को समझें कि खुदा का कलाम हम सब के लिए है, चाहे वो नेकी है, चाहे वो बदी करने वाला है। जब बदी करने वाला इस कलाम को सुनेगा तो यकीनन वो बदलेगा। ये नहीं है कि आज कोई शराब पीता है तो उसका चर्च जाना मना है। किसी का कोई चर्च जाना मना नहीं है, किसी भी खुदा की हैकल में जाना मना नहीं है। आप यरूशलेम में भी जा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि वहां जाकर जब आप कलाम को सुनेंगे तो यकीनन आप बदलेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम बेतसीर नहीं लौटता, ये अपना पूरा काम करता है और इसको इख्तियार है। ये गूदे गूदे से होकर गुजर जाता है, ये 2 धारी तलवार से भी तेज है, ये मौसर है, ये ऐसा कलाम है जो आपको बदल डालता है। मेरे जो जिंदा कलाम है, मौसर कलाम है, हमें समझने की जरूरत है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।